My dear friends, today we are going to have a deeper knowledge about the Turkey Syria earthquake because recently you have seen more than 21,000 people faced a tragic death because of this earthquake. That's why I have selected this topic for you because you must understand the basics because question may be asked in prelims and mains about different dimensions. So this news of Turkey Syria earthquake happened in news. So first of all, think about the question earthquake. What is an earthquake? हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं? भूकंप. हिंदी का टर्म आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग दे सकता है. भू मीन्स अर्थ एंड कंप मीन्स वाइब्रेशन, सिस्मिक वाइब्रेशन. सो सिस्मिक वाइब्रेशन एक ऐसा शब्द है, ऐसा टॉपिक है, ऐसा टर्म है जो अपने आप में एक फियर साइकोसिस जनरेट करता है वर्ल्ड पॉपुलेशन के लिए. तो भूकंप तो यदि आप शारीरिक तौर पर देखें तो यदि हम अपने भोजन को प्रॉपरली नहीं ले पाते और कहीं भी इम्बैलेंस और संतुलन होती है तो हमारे शरीर के अंदर भी तरह तरह के भूकंप उत्पन्न होती है. और यदि हम परिवार में भी चीज़ों को प्रॉपरली एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए नहीं जी पाते तो भी मानसिक भूकंप उत्पन्न होती है एक दूसरे को ईगो क्लैश और रिएक्शन के थ्रू. लेकिन हम आज सिर्फ पृथ्वी सतह के भूकंप की चर्चा करने जा रहे हैं. व्हाई अर्थ इज ऑलवेज फेसिंग डिफरेंट काइंड ऑफ वाइब्रेशन. सो व्हाट आर द मेजर कॉज? क्यों अर्थ के पृथ्वी के अंदर भूकंप आती ही क्यों है आखिर? आपने कभी सोचा है कि लाखों लोग, हजारों लोग मारे जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है? यहाँ यदि सीरिया और टर्की में भूकंप आया तो इससे पहले दिल्ली में भी आ चुका है कई बार. कश्मीर में हर साल आती रहती है भूकंप, सालों भर 365 दिनों में 200 से ज़्यादा भूकंप आती है. उसके क्या कारण है? तो इंडिया के कंडीशन को आप गौर से देखें तो इंडिया का जो प्लेट है इसको कहते हैं हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट. दिस इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, दैट इज द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, एंड हियर इज Eurasian plate that is also moving in the same direction like this. So direction is same, but the rate of movement is quite different. Eurasian plate is a huge plate. ये बहुत बड़ा प्लेट है जो बहुत स्लो स्पीड से मूव कर रहा है. बट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इज कंपेरेटिवली स्मॉल and it is moving faster. So you can correlate it like a huge truck fully loaded is moving and that is being hit by a small vehicle with full speed. So if this small vehicle is striking at this portion of the huge truck, what will happen? It may move upward or downward. So here happening is the subsidence, or you can say this small vehicle is going inside. So Indian plate is subducting below the Eurasian plate, and this is the demarcation line along which there is collision happening. So this is the collision, that is the region behind seismic vibration. Term seismic, you can correlate, you can break it like this. Seism means break. Seism term relates to break. So just imagine a rock block having different rock particles having a bond between them. If there is a stress over this block, then there may be breakdown and the bond between the particles will break and release the bond energy. So this bond energy is also known as seismic energy,
and that starts moving in the form of wave, and then we call it seismic wave. So seismic wave is further divided into two categories: those lying inside the earth and those moving over the surface of the earth. Those lying inside is called as body wave, and those moving over the surface is surface wave. So body wave may further be categorized into P and S wave, and this one is L and R wave. So these L and R wave are disastrous in nature because they are ellipsoidal in motion and they vibrate the body of our buildings in different way. Means our any building is having their wall vibrating at different speed, and the roof having a high mass will vibrate with different speeds. So differential vibration of the body of the building results into breakdown and fall. So this is the reason. Now here there may be a question, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि आखिर ये प्लेट, इंडियन प्लेट मूव क्यों कर रहा है? कोई भी प्लेट टर्म जब आपके सामने आता है, प्लेट, व्हाट डू यू थिंक? खाने की प्लेट तो नहीं. प्लेट मीन्स व्हाट? लिथोस्फेयर, लिथोस्फेरिक ब्लॉक. तो ये जो अर्थ है, ये अर्थ बड़े बड़े ब्लॉक्स में डिवाइडेड है. 7 मेजर प्लेट हैं और उसके अलावे मोर देन 20 स्मॉलर प्लेट्स हैं. तो उसी में एक हमारा मेजर प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट. और सभी प्लेट मूवमेंट में है क्योंकि पृथ्वी पर हर चीज गतिशील है, हम भी गतिशील हैं और हर ऑब्जेक्ट गतिशील है. एवरीथिंग इज चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम. But the major reason behind the movement of these plates are the convection current. Convection current of magma inside the lithosphere. Inside asthenosphere. Inside asthenosphere. Inside the asthenosphere, at the upper layer, there will be least heating, and comparatively there will be higher heat condition in the lower layer of the asthenosphere. So differential heat condition at upper and lower layers generate a convection current, and that convection current is magmatic current that is disastrous for the lithosphere lying above, and then lithosphere is getting broken down. So most important driving factor behind the movement of plates, इस प्लेट के मूवमेंट को ड्राइव करने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? मैग्मा की कन्वेक्शन करंट. So you understood why plates are moving, lithospheric blocks are moving, and because of the movement of these lithospheric blocks, India is also having the vulnerability to earthquake. हम इंडिया को हमने क्या किया है? जोन 5, 4, 3 and 2. So 4 जोन में हमने इंडिया को बांटा है on the basis of probability of destruction or vulnerability to the seismic movement. तो इसी पामीर नॉट is the point here, हिमालय के पास, और इसी का एक्सटेंशन टर्की तक जाता है, जिसको मैं अगले स्लाइड में आपको दिखाऊंगा. Okay, leave it. So this extension of this Pamir knot is like this. So this is the Anatolian plateau in Turkey. So here is Taurus mountain and Pontic mountain, like this. So between the Taurus and Pontic mountain there is Anatolian plateau, and different fault zones are here. So these different fault zones are the center of movement, and accordingly they create
So I told you about the Indian plate is like here, and here is the Himalayan mountain, and this is the Pamir knot. So it extends towards Anatolian plateau of Turkey. This one is Pontic, and this one is Taurus. And these are the belts of variety of faults. So what is the meaning of the fault? First you try to understand. If any rock block is passing through a tensional force, then it breaks like this. And if there is movement along this block, then it will lead to creation of a structure like this. And this is the zone along which these two blocks move and create a frictional force. So this is the zone which is called as frictional zone of fault, जहाँ पर दो ब्लॉक आपस में घिसते हैं और वहाँ पे variety of energy, seismic energy is generated that starts moving in different direction to create seismic vibration. So in case of Turkey, this is the case that has happened. So this fault and this fault, there is another fault here in this direction also. So fault is always associated with the tectonic plates. जितने भी टेक्टोनिक प्लेट हैं उसमें डिफरेंट डायरेक्शन में आप ऑब्जर्व करेंगे बिकॉज ऑफ द डिफरेंशियल मोशन ऑफ द डिफरेंट ब्लॉक्स. यदि ये ब्लॉक सपोज करें इस डायरेक्शन में मूव हो रही है, ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव हो रही है, इस डायरेक्शन में मूव हो रही है, सो देयर विल बी ए डिफरेंशियल friction between them and the rock blocks will break. So there will be movement of blocks in different direction and that will create the fault. इंडिया के अंदर भी सिक्किम अर्थक्वेक और भुज अर्थक्वेक, ये दो मेजर अर्थक्वेक जो हुए थे भुज में और सिक्किम में, जिससे कि लाखों लोग प्रभावित हुए थे, ये दोनों अर्थक्वेक फॉल्ट के अकॉर्डिंग अलोंग मूवमेंट की वजह से ही हुए थे. तो आपने न्यूज में देखा होगा कि टर्की में जो अर्थक्वेक आई है तो आते ही सबसे पहला न्यूज आएगा 7.8 मैग्नीट्यूड. ये टर्म क्या बताता है? 7.8 magnitude means what? So it is a Richter scale. It is about the Richter scale. There are two scales, Richter scale and Mercalli scale, over which we measure. Mercalli scale. So Mercalli scale gave you the idea about the intensity. And there is Roman letter 1 to 12 for depiction of different intensity, but they are perception based, subjective in nature, perception based and subjective in nature. That's why widely not used. But Richter scale gives you the magnitude, idea of the magnitude of energy released, magnitude of energy, seismic energy, and reading is 0 to 9. So in this scale, it is a logarithmic scale, and our this scale 0 to 1 and 1 to 2, 2 to 3 up to 9. This is the digit. So every digit have a logarithmic increase in the value of energy and amplitude. So on this scale, up to 6 is a normal vibration which is happening everywhere, normal vibration, in which destruction cannot be expected. Least destruction probability happens, but if we move beyond 6 to 6.5, then there will be minor destruction. If it moves beyond further than 6.5 to 7, then there will be large destruction. So gradually when we move upward from 6 to 6.5 to 7, 7.5, likewise we will find a major destruction. So in Turkey, there were
7.8 magnitude earthquake. That's why there have been major destruction. Now, we think about the causes. What are the causes of seismic vibration? earthquake की वजह क्या है? इसको यदि आप थोड़े डीपर लेवल पे जाएंगे, यदि बिल्कुल ही एकेडमिक लेवल पे देखेंगे, तो इसके दो काउजेज हैं, टेक्टोनिक और नॉन टेक्टोनिक. बट इसको यदि आप थोड़ा बेहतर वे में समझना चाहें तो थोड़ी डीपर बारीक चीज़ों को समझनी पड़ेगी. लाइफ के 5 का पंच, 5 लेटर डिजिट आपको याद रखने होंगे. तो 5 का पंच में क्या आता है, आपको ये समझना होगा कि हमारे हाथों में 5 फिंगर्स हैं. वी आर हैविंग 5 fingers, and these 5 fingers are symbolic. Nature has given us to understand the importance of this 5 in our life. Our body system, entire earth and the entire universe is made up of 5 elements. 5 elements. कौन कौन से 5 एलिमेंट हैं? फायर, एयर, स्पेस, earth and water. So these are the 5 elements. इसी 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, पूरी पृथ्वी बनी हुई है और पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है. तो इन 5 तत्वों के आपस में जो संतुलन है, समन्वय है, म्यूचुअल बैलेंस है, इसको मेंटेन करने से हमारा शरीर, मन, आत्मा सब संतुष्ट और संतुलित रहती है. इफ देयर इज एन इम्बैलेंस बिटवीन दीज 5 एलिमेंट, वी क्रिएट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन आवर लाइफ. वी फेस मेंटल एंड फिजिकल प्रॉब्लम. तो ये 5 एलिमेंट से पूरी पृथ्वी बनी हुई है. तो उसमें यदि कोई इम्बैलेंस क्रिएट किया जाता है बिकॉज ऑफ द मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो उससे ये बैलेंस पृथ्वी का डिस्टर्ब होगा. तो नेचुरली नेचर खुद ब खुद सेल्फ मैकेनिज्म के थ्रू उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगी और उसका एक आउटकम और कॉन्सिक्वेंस आप कह सकते हैं कि देयर इज सिस्मिक वाइब्रेशन. अगली चीज है 5 एलिमेंट. 5 फिंगर हैं, 5 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है. एलिमेंट क्या है? मीन्स विकार. इंसान के मन मस्तिष्क में जो 5 विकार होती हैं, वही सारे प्रॉब्लम की जड़ है उसके व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में. तो वो 5 विकार क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ एंड अहंकार. गौर से देखें, बारीकी से देखेंगे तो ज्यादातर समस्याएं जो मानव जीवन में होती हैं, इन्हीं 5 की वजह से होती हैं, जो इंसान उसको समझ ही नहीं सकता कि हमारे व्यवहार में इन 5 में कौन सा आ रहा है, कौन हमें नियंत्रित कर रहा है, कौन हमारे व्यवहार को. अगला है 5 सेंस ऑर्गेन, जिसके थ्रू हम जीवन के में अपने आसपास की चीज़ों को समझते हैं, इंफॉर्मेशन डिराइव करते हैं. ये क्या है? आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा. पता है आप सबों को. इसी तरह से 5, इसको हम क्या कहते हैं? ज्ञानेंद्रियां. और 5 हैं एक्शन ऑर्गन, मीन्स कर्मेंद्रियां, जिससे हम एक्शन करते हैं बॉडी में, किसी भी तरह के एक्शन, एक्शन ऑर्गन. ये 5 कौन कौन से? हाथ पैर हैं, जननेंद्रियां हैं, गुदा है और माउथ. तो ये 5 एक्शन ऑर्गन है, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं. तो ये जो 5 का पंच है, इसी तरह से पृथ्वी के अंदर 5 स्फीयर है, 5 स्फीयर ऑफ लाइफ. वो कौन कौन से हैं? लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एंथ्रोस्फीयर. मीन्स मानव जो अपने जीवन में इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन की वजह से जो उन्होंने एक स्फीयर क्रिएट किया है कंक्रीट का पूरे वर्ल्ड में, वो एंथ्रोस्फीयर है, एंथ्रोपोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर जिसमें वाटर डोमिनेंट है 2/3,
बायोस्फीयर है जिसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट इकोसिस्टम के इंटरैक्ट करते हैं, और वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, जियोकेमिकल साइकिल, मल्टीपल साइकिल के थ्रू हाइड्रो जो है चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। एटमॉस्फेयर है जो ट्रोपोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर, एग्जॉस्फेयर है, और लिथोस्फेयर है जिसके अंदर आप क्या देखते हैं, क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। सो दीज आर द 5 स्फीयर. So you have to understand the basics or subtle things of all these 5 punch. ये 5 चीज़ों को 5 फिंगर से हमने, गॉड ने और नेचर ने हमें दिया है जिससे हम समझ सकें चीज़ों को, कि 5 एलिमेंट्स हमारी लाइफ को किस तरह से रेगुलेट करते हैं, 5 एलिमेंट्स अर्थ को कैसे रेगुलेट करता है। ये बहुत ही बारीक चीज़ है जिसको ग्रेजुअली आप समझेंगे समय के साथ। 5 एलिमेंट कौन कौन से हमारे जीवन की, 5 सेंस ऑर्गन हमें क्या क्या देता है, एक सर्टेन लिमिट के बियॉन्ड हमें ये सेंस ऑर्गन्स कुछ भी नहीं बता पाता। उसी तरह से 5 एक्शन ऑर्गन है जिसकी वजह से हम मल्टीपल एक्शन लेते हैं और उससे पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होती हैं, और 5 स्फीयर अर्थ के हैं। तो ये हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग जब आपके माइंड में आएगी तभी आप समझ पाएंगे कि अर्थ में कोई भी जो डिजास्टर होता है वो क्यों होता है और उसको कैसे काउंटर किया जा सकता है। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू द एकेडमिक कॉजेज, टेक्टोनिक एंड नॉन टेक्टोनिक कॉजेज पे। फर्स्ट, टेक्टोनिक कॉजेज constitute more than 70% earthquake in world. इसको मेनली आप 3 तरह से समझ सकते हैं कि वो लोकेशन जहां पर कि 2 प्लेट आपस में कोलाइड कर रहे हैं, इस तरह से यदि 2 प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव होंगे तो नेचुरल है कॉलिजन होगी। तो कॉलिजन होगी तो प्लेट की नेचर के अकॉर्डिंगली वहां पे रिजल्टेंट आपको मिलेंगे। यदि प्लेट, दोनों ही प्लेट सेम डेंसिटी के हैं, यदि कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल हैं तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर एक राइज कर जाएंगे इस तरह से। यदि एक कॉन्टिनेंटल है एक ओशियनिक है तो एक सबडक्ट कर जाएगा, जो भारी होगा वो नीचे चला जाएगा। तो इस तरह से एक कंडीशन आएगी। like this. So a subduction mechanism will start here. And during subduction, huge amount of friction will generate huge amount of seismic energy. और ये seismic energy इस पूरे जोन में अर्थक्वेक की वाइब्रेशन क्रिएट करेगा। ये कहाँ कहाँ पे है वर्ल्ड में? जापान की अर्थक्वेक, यूरेशियन प्लेट एंड पैसिफिक प्लेट, ये दोनों आपस में कोलाइड कर रहे हैं। इसको आप गौर से समझ सकते हैं कि यूरेशियन प्लेट एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है जो लाइट है कंपैरेटिवली, बट पैसिफिक प्लेट एक ओशियनिक प्लेट है जो कि हेवियर है, हेवियर इन नेचर, इज इट लाइटर इन नेचर। तो 2 टाइप के प्लेट हो गए, एक लाइट है और एक हेवी है। तो जो हेवियर है ये पैसिफिक प्लेट, तो वो नेचर सबडक्ट करेगा, और ये लाइटर प्लेट है हमारा यूरेशियन प्लेट। तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ कोलिजन बिटवीन द प्लेट्स। इस तरह के बाउंड्री को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। तो ये सबसे ज्यादा हेवॉक क्रिएट करता है जिस भी बेल्ट में, अर्थ के डिफरेंट बेल्ट में जहां पर भी 2 प्लेटों की कोलिजन हो रही है। जैसे इंडिया के केस में मैंने अभी बताया आपको कि इंडिया के केस में इंडिया इज मूविंग लाइक दिस and Eurasian plate is here. So this is the Eurasian plate, boundary of the Eurasian plate. It is also moving in the same direction. So this is the zone of collision between the Eurasian plate and Indian plate. तो यहाँ भी collision हो रही है और यहाँ पर भी आप देखते हैं कि पूरे सिस्मिक अर्थक्वेक जो कश्मीर में आती है, पूरे हिमालयन बेल्ट में जो अर्थक्वेक आती है इसी collision की वजह से आती है। तो पहला डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, दूसरा है कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, जहां पर कि 2 प्लेट एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हो, लाइक दिस। जैसे कि मिड अटलांटिक रिज, अटलांटिक ओशन में मिड अटलांटिक रिज है जहां पर कि 2 प्लेट आपस में एक दूसरे से डिफरेंट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे एक गैप क्रिएट होगी और नीचे की मैग्मा ऊपर आ जाएगी, यहाँ पे वोल्केनिज्म होगा। तो जैसे ही वोल्केनो, ये लावा या मैग्मा बाहर निकलेगी तो यहाँ पर एक वैक्यूम स्पेस क्रिएट होगा
और बिकॉज ऑफ दिस वैक्यूम देयर विल बी अनस्टेबिलिटी इन द प्लेट एंड देयर विल बी माइनर वाइब्रेशन. तो पहला कंडीशन मैंने आपको बताया डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, हियर इज कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री. तो ये मेजर पोर्शन है, मेजर काउजेज है पूरे वर्ल्ड में अर्थक्वेक का, और उसके बाद ये माइनर काउजेज है. थर्ड इज if two blocks have separated because of the fault, then they will move past each other. Sliding motion will be there. इसको कहते हैं कंजर्वेटिव बाउंड्री, स्लाइडिंग मोशन. तो इसको क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव बाउंड्री. और ट्रांसफॉर्म फॉल्ट कंडीशन, जो कि सैन एंड्रियाज फॉल्ट कैलिफोर्निया के पास दिखता है आपको. तो टेक्टोनिक कॉजेज में मैंने आपको बताया कि दीज आर द कंडीशंस बिटवीन द डिफरेंट प्लेट थ्रू आउट द ग्लोब. कहीं पे प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, कहीं पे एक दूसरे से नज़दीक आ टुवर्ड्स ईच अदर, दे कम टुवर्ड्स ईच अदर. तो कॉलिजन होती है और उससे सिस्मिक वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है. तो इस तीनों कंडीशन को एक्सप्लेन करना होगा, तभी आप प्रॉपरली अर्थक्वेक के कॉजेज को एक्सप्लेन कर पाएंगे. नेक्स्ट है नॉन टेक्टोनिक. नॉन टेक्टोनिक कॉजेज कौन कौन सी हो सकती है जहां पर की प्लेट का कोई योगदान नहीं है? तो सबसे पहला है डैम बर्स्ट. बड़े बड़े डैम हम रिवर के ऊपर क्रिएट करते हैं डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए, पावर जनरेशन के लिए, इरिगेशन के लिए, फिशिंग के लिए. तो सबसे पहला है डैम बर्स्ट. सपोज करें कि एक रिवर फ्लो हो रही है और हमने एक बड़ा सा डैम यहां क्रिएट कर दिया लाइक दिस. दिस इज द फाउंडेशन. अब ये ग्रेविटी डैम सपोज हमने बना दिया, यहाँ पे ग्रेविटी डैम हमने क्रिएट कर दिया और ये वाटर की प्रेशर इसके ऊपर क्रिएट हो रही है. दिस इज द फाउंडेशन रॉक. अब जस्ट इमेजिन करें कि यहाँ पे क्या कंडीशन होगी. ये वाटर कॉलम एक प्रेशर क्रिएट करेगा इस डैम के ऊपर, तो ये वाटर प्रेशर होगा. और इस डैम की अपनी एक ह्यूज स्ट्रक्चर है जिसका एक वेट होगा जो कि इस डायरेक्शन में काम करेगा. तो रिजल्टेंट फोर्स क्रिएट होगी ये, और इस रिजल्टेंट फोर्स के डायरेक्शन में यदि कभी भी किसी भी वजह से एक क्रैक आ गई, फॉल्ट आ गया, तो क्या होगा? इंटायर स्ट्रक्चर स्लाइड कर जाएगा और ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर दैट हैज बीन स्टोर्ड हियर विल फॉल एब्रप्टली and that will release the huge amount of seismic energy and all the rock blocks will move and seismic vibration will result. तो एक अर्थक्वेक इस तरह से भी आ सकता है. इंडिया में एक बार कोयना अर्थक्वेक का नाम सुना होगा आपने. लातूर अर्थक्वेक जो कि पेनिनसुलर में इंडिया में हुआ था, ये कोयना डैम में ये कंडीशन उत्पन्न हुई थी और उसी की वजह से ये अर्थक्वेक आया था, जो कि लीस्ट प्रोबेबल अर्थक्वेक था, क्योंकि नॉर्मली पेनिनसुलर इंडिया के अंदर हार्ड रॉक ब्लॉक्स हैं जहाँ की भूकंप नहीं आते. और उस वहाँ हमने एक डैम क्रिएट कर दिया और उस डैम में क्या हुआ, वाटर यहाँ पे धीरे धीरे अंदर परकोलेट होने लगा और इस परकोलेशन की वजह से यहाँ पे जितने भी रॉक ब्लॉक एक दूसरे से स्टेबल कंडीशन में थे, आपस में एक दूसरे से एडजस्टेड थे, सैचुरेटेड थे, उन सबों के ज्वाइंट में वाटर जमा हो गया. और बिकॉज ऑफ दैट वाटर फिल्म देयर वर स्लाइडिंग मोशन, रीएडजस्टमेंट बिटवीन द ब्लॉक्स, and because of this readjustment between the rock blocks in the foundation rock there were minor vibration in लातूर. तो पहला कारण हो गया. पूरे वर्ल्ड में, यूएसए में भी कई सारे डैम बर्स्ट हुए हैं और उस डैम बर्स्ट की वजह से माइनर वाइब्रेशन आती रही है. अनदर इज डायनामाइट ब्लास्ट. इन माइनिंग बेल्ट्स, माइनिंग एरियाज में हम क्या करते हैं, बड़े बड़े पहाड़ों में डायनामाइट लगा करके माइनिंग एक्टिविटीज, यू कैन सी माइनिंग एक्टिविटीज जो हम करते हैं, तो उस माइनिंग एक्टिविटीज में हम बहुत सारे डायनामाइट का यूज करते हैं रॉक ब्लॉक्स को सेपरेट करने के लिए. तो उसकी वजह से एक माइनर वाइब्रेशन पूरे बेल्ट में आती है और उससे एक अनस्टेबल कंडीशन जनरेट होता है.
जो लॉन्ग ड्यूरेशन में एक अर्थक्वेक की उत्पत्ति का कारण बनता है। फिर अर्बनाइजेशन कह सकते हैं आप। अर्बनाइजेशन के दौरान मल्टीपल स्ट्रक्चर, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स वी क्रिएट मल्टीपल टनल्स, मेट्रो टनल्स जैसे हम बनाते हैं। तो ये सभी जितने भी स्ट्रक्चर हम क्रिएट करते हैं, ये क्या करते हैं, अर्थ की स्टेबिलिटी, जो नेचुरल स्टेबिलिटी है, उसको इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं, उससे अनस्टेबल पोजीशन क्रिएट होती है। सो इन स्टेबिलिटी बिटवीन द रॉक ब्लॉक्स इनसाइड द अर्थ। तो ये रॉक ब्लॉक्स की इनस्टेबिलिटी लॉन्ग ड्यूरेशन में अर्थ की मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक के निर्माण का कारण बनती है। तो ये एक अलग कंडीशन हो गई। एक और कारण है नॉन टेक्टोनिक में, वो है रिजर्वायर इंड्यूस्ड। डिफरेंट काइंड ऑफ रिजर्वायर वी क्रिएट। रिजर्वायर मीन्स वाटर स्टोरेज। बहुत सारे लोकेशंस हमने अर्थ के ऊपर बना रखे हैं जहाँ पर कि हम वाटर की स्टोरेज करते हैं। लाइक दिस, हमने वाटर की स्टोरेज कर ली ताकि किसी भी वाटर स्कार्सिटी की कंडीशन को हम हैंडल कर सकें। अब जब हमने ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर कर लिया, तो नेचुरली यहाँ जो रॉक ब्लॉक्स हैं इसके इस बेल्ट में, वो नीचे हैं, वो तो हमें दिखते नहीं, बट ये वाटर धीरे धीरे क्या करता है, सिंक करता है, सीपेज होती है इसकी, परकोलेशन होती है। तो डाउनवर्ड मूवमेंट होने से क्या होगी कि डिफरेंट रॉक ब्लॉक्स जो यहाँ पर स्टेबल कंडीशन में होंगे, उसके बीच में वाटर का इन्फिल्ट्रेशन होगा और ये सभी अनस्टेबल हो जाएंगे। उसके आपस की जो फ्रिक्शनल फोर्स है जिसकी वजह से वो स्टेबल हैं, वो चेंज होगी और फिर इस बेल्ट में एक अनस्टेबल कंडीशन क्रिएट होती है। तो ये जो रिजर्वायर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी इसको कहा जाता है, ये यूएसए में बहुत ज़्यादा होती है। इंडिया में भी बहुत सारे केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए। अब इसमें हम आते हैं टर्की और सीरिया कंडीशन की, अर्थक्वेक की कंडीशन में कौन कौन से ऐसे आयाम हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम नॉर्मली पेपर पढ़ने में और न्यूज़ मैगजीन से इंफॉर्मेशन डिराइव करने में भूल जाते हैं कि एग्जैक्ट कॉज, व्हिच वाज द मेन कॉज, व्हिच फॉल्ट, कौन से फॉल्ट के अलोंग मूवमेंट हुई। इस फॉल्ट का नाम याद रखना है आपको। तो ये है एनातोलियन फॉल्ट, ईस्ट एनातोलियन you can say, because there is north also. East Anatolian fault was the center along which there were block movement and major disaster happened. Second, how the fault movement was driven, कहाँ से ये ड्राइव होता है, कहाँ से ये फॉल्ट ड्राइव हुआ, कहाँ से फोर्स इसको मिली। तो आप गौर से, मैंने आपको बताया कि इंडिया प्लेट के नॉर्थ में आपने देखा ये हिमालय है और यहाँ पे क्या है, पामीर नॉट मैंने बताया, और यही पामीर नॉट से एक्सटेंशन इस तरह से जाती है यहाँ पे आर्मेनियन नॉट। तो ये आर्मेनियन नॉट के से जो माउंटेन रेंजेस इस तरह से एक्सटेंड होती है, तो ये हमारा पॉन्टिक माउंटेन है और ये टॉरस माउंटेन है। So entire channel, you can say mountain range, starting from Alps up to Arakan Yuma in Myanmar, ये जो पूरा चेन है यूरोप से शुरू होता है और यहाँ म्यांमार के अराकान योमा तक जाता है, ये सभी आपस में लिंक्ड है। और इसी लिंकेज में आप गौर से देखेंगे कि अलग अलग प्लेट की मूवमेंट अलग अलग है। टर्की के जो एनातोलियन प्लेट्यू है उसकी मूवमेंट ऑलमोस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, जबकि यूरेशियन प्लेट की मूवमेंट आप किधर देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। यहीं पे अरबियन प्लेट है वो नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है, यहाँ पे अफ्रीकन प्लेट है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा है। सो डिफरेंशियल स्पीड। तो यहाँ पर आप क्या समझ रहे हैं कि अलग अलग प्लेट की, डिफरेंट प्लेट moving
in different direction with different speed, create a differential stress between the blocks, and because of that differential stress energy is released, that is causing differential scale of vibration all along the belt. So this is the major point that you have to keep in your mind. Now, after this earthquake, you have to understand the condition of India is there. ज़्यादातर इंडियन लोग डरे हुए हैं कि ऐसा तो नहीं, बहुत सारे टीवी चैनल पे बताया गया कि टर्की के बाद अब इंडिया में भी एक मेजर अर्थक्वेक की संभावना है। तो संभावना तो कभी भी कहीं भी आ सकती है, बट आप गौर से देखें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा वल्नरेबल पोर्शन कौन सा है? दोज बेल्ट विच इज़ नियर टू द कॉलिजन जोन। मैंने आपको बताया कि ये इंडस सांगपो सूचर जोन, जिस नॉर्थ में यूरेशियन प्लेट है और साउथ में इंडियन प्लेट है, तो ये सबसे बड़ा काउज है। इस बेल्ट से नियरेस्ट बेल्ट जो भी होगा वहां सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी। अब इसी में सपोज करें कि दिल्ली की कंडीशन को हम देखें तो दिल्ली को आप दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक यमुना को आप एक डिवीजन लाइन मान लें। ईस्टर्न बेल्ट, दोज एरियाज लाइंग ईस्ट ऑफ यमुना एंड दोज लाइंग वेस्ट ऑफ यमुना। तो दोनों के बीच बेसिक डिफरेंस क्या है? तो ईस्टर्न बेल्ट में आप देखते हैं यमुना का जो एलोवियम है, मल्टीपल लेयर्स ऑफ एलोवियम इज देयर, दैट इज यू कैन से न्यू एलोवियम। और इस बेल्ट में वेस्टर्न पोर्शन में आप देखें रिज एरिया है जहां पर कि हार्ड रॉक मिलते हैं। तो हार्ड रॉक, अब इन केस ऑफ सिस्मिक वाइब्रेशन वेयर इज देयर मोर डिजास्टर प्रोबेबिलिटी ऑफ, किस बेल्ट में ज्यादा डिजास्टर की संभावना आपको दिखती है? जहां पर अनस्टेबल ब्लॉक होंगे, फाउंडेशन अनस्टेबल होगा, वहां पर वाइब्रेशन की ज्यादा संभावना होगी, ज्यादा डिजास्टर होने की संभावना है। तो ईस्टर्न पोर्शन जो है दिल्ली का वो ज्यादा खतरनाक है, वहां ज्यादा डिजास्टर हो सकती है। यदि सपोज करें 6.5 मैग्नीट्यूड की अर्थक्वेक आती है, 6.5 से 7 तक की, तो डिजास्टर होंगे, ऑफ कोर्स होंगे, बट वेस्ट में कम होगा और ईस्ट में ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द फाउंडेशन रॉक। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।